ठीक है तो शुरू करते हैं आप। ठीक है बंद नहीं करना। बंद कर दो। बंद नहीं करेगी क्या? यार मुझे मुझे लेकर दस ही है क्यों चला रहा है? इतना तो तेज बोला था। ओके चलो वेलकम टू द क्लास। So basically the goal of the class today is to learn little about pranayama and breath and the thing that we may need that going to help you at the Everest Base Camp. ठीक है तो उतने जाओगे तो altitude हाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ हाँ उसको भेजना है एक दो लोगों को। तो at the high altitude you do need some better lung capacity and of course yoga and pranayama has everything you need that's going to help you. Some things we do not know how your body reacts at high altitude you never know but we'll prepare as much as we can. ठीक है तो पहले प्राणायाम होता क्या? Do you guys know what pranayama is basically and what is breath and the pranayama together? Why you breathe in a certain way and you tell that you are doing pranayama? Anybody? Any? प्राण get more से oxygen maybe it's in your related blood. to प्राण. हाँ Right? prana Yeah. ठीक है but Yeah, what is sorry. prana? प्राण is your energy, your life life force. force and that your Life force. Yeah. तो मैं explain कर देता हूँ ठीक है Right. तो योगिक फिलॉसफी में क्या there are you have 5 bodies. Okay, एक होता है फिजिकल बॉडी दैट वी ऑल नो अन्नमय कोशा बोलते हैं उसको होता है बॉडी ऑफ माइंड क्योंकि माइंड इज अ बीस्ट राइट you cannot control the mind so they study mind in its own body it's a body of emotions feelings ये सब चीज that's मनोमय कोशा then आता है प्राणमय कोशा the pranic body the body energy body भी कहते हैं लोग उसको right the body of energy where you have nadis you have surya nadi chandra nadi there are 72,000 nadis sushumna nadi and all that right that's all pranic body that's going to talk a little more and then there are 2 more bodies that's called vijnanamaya kosha body of intellect like your discriminatory mind the mind where you decide good bad karu na karu kind of thing and then finally is a bliss body that is your true body in sense baki there are all the layers covering that bliss body so talking about pranic body like pranamaya kosha so have you ever thought of कुछ खाते हो आप तो अपने आप चीज डाइजेस्ट हो जाती हैं right why it gets digested automatically you don't do anything right but things get in action right to digest your food same thing you breathe things get in action and you breathing right same thing your body has certain temperature right it has to be in certain range थोड़ा कम हो तो प्रॉब्लम है अधिक हो तो प्रॉब्लम है right it has certain range right so what is that thing that controls the temperature of the body same thing your body weight also if I have to lift Nishan I can lift him maybe right with some effort maybe but if I have to lift him when he's dead I cannot lift him because he is so heavy when you die body gets very heavy so what is that thing that keeps the body like it adds a little buoyancy to that right where you feel a little lighter right then you do hiccups right you blink your eyes when you die and you leave the body just like that body start decaying right then what is that thing that decays the body so these all requires energy to do anything you need energy right so that's where prana comes into the play and yogis they find out we have like 5 major prana and 5 minor pranas ठीक है अब 5 major prana what are the major pranas one's called apana vayu means anything which is like throat and through your respiratory system that is called apana vayu it's a prana vayu upward force prana vayu apana vayu is downward force anything navel and down it's all controlled by the apana vayu so if you have any kind of problem in your those kind of thing reproductive system and all those things then apana vayu is the one that needs to get healed and then samana vayu which is in your stomach region if you have some digestive issue and all that then you work on that to fix it samana vayu then throat and head all your tongue sensory organs and all that nose ears touch all those if there's any problem with that that's because of udana vayu and then it's called vyana vayu which kind of pervades to entire body that basically to control all your body temperature or control all the other pranas too and then 5 up prana kehte hain usko up prana that is prana to blink your eye energy requires to blink your eye for the hiccups and all that So is it all this is all chakra? no chakra is energy junction That's the fact. we have 72,000 nadis right they all meet at certain point process right now. they all meet at certain point in your body towards your spinal column the kundalini jagran right so 7 chakra hote hain jahan pe energy junctions
where they meet at 7 places, Okay. right? So and that's where the dormant energy also resides, right? So if you do certain kriyas and all that, it ignites the energy, like from Muladhara to Sahasrara, the 7th chakra, right? So that's what prana is basically. Now, so for the physical body, you do so many things to make it healed, right? You take medication also, maybe, you eat good food, you go to gym to make muscle, but how can you heal your pranic body? It's not like something tangible, right? That you can do something to fix it. Then we use the breath. Breath and prana are two different things. You can be alive for few moments without having breath in you, right? You can exhale, hold, you're not dead, right? But if prana leaves your body, you are dead. So prana never leaves the body. But the only way to touch this prana and heal it is from your breath. So if you breathe in a certain way, that as prescribed, so many pranayama, because you breathe in certain way, right? Anulom, Vilom, Nadi Chodhan, Surya and all that. That's when you touch the prana using your breath. So breath's kind of vehicle to heal your prana. Okay. So soul is different than prana. Huh? So सोल आप तो बहुत डीप जा रहे हो सोल तो चलो उस बॉडी बहुत ब्लिस बॉडी वाला सोल लेकिन डिफरेंट चीज है ना सोल इज डिफरेंट मेरे को भी आया हाँ, because मेरे को भी soul आया छोड़ सोच के रही जाती थी है। कहाँ से पता क्या so these prana are they are all part of your physical body also because there are three main bodies physical body subtle body causal body तो तुम्हारा जो सोल है ना सोल तो नहीं बोलते ऐसे बट चलो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोल बोल दो इज लाइक पार्ट ऑफ ब्लिस बॉडी दैट इज नॉट एनीथिंग फिजिकल प्राण चला आता है बट सोल तो इट गोज फ्रॉम लाइफ टू लाइफ जो भी हमारा हिंदुइज्म बिलीव है राइट तो दैट्स व्हाट इट इज सो हम लोग थोड़ा ब्रेथ करेंगे बट बिफोर दैट also the composition of the breath when you inhale and exhale what actually happens right हम लोग सब जानते हैं ना कि inhale करते हो ऑक्सीजन एक्सपेल करते हो कार्बन डाइऑक्साइड राइट तो कितना करते हो डू यू नो हाउ मच डू यू डू इट वेरी नॉमिनल if you look at the composition of that basically when you breathe in inhalation and exhalation basically it's like 500 milliliter of the volume you inhale in one breath and exhale right out of 500 ml only like 20.9% is the oxygen that you inhale 79% is the nitrogen and there's less 0.0% is the carbon dioxide right when it comes out that 20% get converted to 16.9% oxygen so 4% जो oxygen और carbon dioxide मिलके it comes out so only 4% carbon dioxide you expel right but with yogic breathing and deep breathing that number gets increased the more oxygen get absorbed in your body if you do deep breathing with the normal breath you basically only 4% carbon dioxide that comes out the rest oxygen भी आता है बाहर भी you also expels lot of oxygen also not like पूरा oxygen आप निकाल रहे हो बाहर only 4% that's the only difference right okay so with that so now we'll do some practices okay so what we'll do is we'll start with there's some fast breathing there's some slow breathing so we'll do some fast breathing first but when you do like a schedule like pranayam kar rahe ho you must start with some fast first and then go on slow and then you end with some kind of meditation so हमारा goal वही है first we'll do some fast breathing and understand the difference between those fast breathing then we'll do some slow breathing pranayama and then we end with some breath awareness meditation ठीक है that's the goal of today's session ठीक है so सबसे पहले हम लोग करेंगे कपाल भाती तो कपाल भाती दो people think it's a pranayama but it's not actually a pranayama it is one of the kriyas certain कर्म क्रिया है ना that to clean your body right one of the kriyas to kind of detox your body from inside तो कपाल भाती में करते कैसे हैं पहले तो हाँ कोई जब भी कोई प्राणायाम करेंगे ना तो यू सिट स्ट्रेट स्पाइन शुड बी स्ट्रेट नॉट लाइक टेक के नहीं बैठेंगे ठीक है या बेड पे नहीं या काउच पे नहीं ऐसे बैठ के when your spine is straight okay तो कपाल भाती it's just forced exhalation okay that doesn't mean that you are not inhaling you also inhale but you are not doing it is happening all by itself ठीक है it's like just हाँ यहाँ पे मतलब पहले तो बॉडी स्ट्रेट करेगा करो आप
relax. Now relax. Everybody got this? How this is being done? Rajat, you clear? Inhalation तो नहीं हो रहा था ना. Inhalation will happen all by it will happen, but you're not noticing it. All you are focusing on exhalation. ठीक है? So to start with, हम लोग पहली बार कर रहे हैं तो start slow because it has lot of thrust on your lungs. So किसी को heart का problem है ना, then you have to be careful. Okay. Other than that, it's good. So that's a Kapalbhati. We'll do it one more time. Okay, just focus on exhalation. Inhalation will happen all by itself. Okay, just 30 round करते हैं फिर से. Inhale, but inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Now relax. Clear everybody? Got clear idea of Kapalbhati? ठीक है? दूसरा फास्ट ब्रीदिंग है भस्त्रिका प्राणायाम. ठीक है? तो भस्त्रिका प्राणायाम इसमें you have to focus on inhalation also. But inhalation is relax. Inhale and exhale with a force. ठीक है? जैसे तुम नॉर्मली क्या करते हैं हाथ को ऊपर करते हैं. That's only we raise the hand to kind of make it more क्या बोलो उसको controlled. ये तो नॉर्मली बैठ के भी करते हैं. Focus on just inhale like that, right? But इससे क्या होता है? It gets a little better, right? So you inhale and exhale with a force. That's Bhastrika. So inhale up. 20 times. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Now relax. Now relax. Quick question. I'm trying to clench onto my teeth. Teeth? It happens या मैं कर रही हूँ? नहीं क्या बोल रही है? Clean My what? teeth and जॉ को दबा रही है. नहीं No, टीथ it's भी not. सेपरेटेड. नहीं हाँ नहीं कभी भी किसी भी कहीं भी जैसे आप मैं श्वासन बोलता हूँ मैं सेपरेट योर टीथ. तो अब देखो ना जहाँ टीथ आपका टच है ना तो फेस थोड़ा टाइट हो जाएगा. मतलब इट्स लाइक नॉट रिलैक्स. आप टीथ को सेपरेट करो टीथ को. यू सी कि जॉ सब रिलैक्स है, राइट? तो रिलैक्स ही रहना है. अननेसेसरी यू डोंट हैव टू लाइक नहीं ऐसे नहीं करना. दांत बीच के नहीं. सिंपल. ठीक है, तो वन मोर राउंड करते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Now clear everyone? भस्त्रिका प्राणायाम. ऑक्सीजन अंदर चला गया, कम गया, बाहर चला निकाल दिया. नहीं. मेरा 16.9 था वो. It helps your lung a lot to increase the lung capacity. झाड़ू लगा है. झाड़ू लगा. So one thing you will notice, actually कोशिश कर सकते थे कपालभाति के या इसमें भी कर सकते हैं कोशिश. Anytime you just it's experience, not because I'm telling you. You do Kapalbhati and then try to exhale and hold your breath. You will be able to hold for a lot longer, at least twice longer than without doing it. Just तुम simple एक ऐसे करो, inhale, exhale and hold and count it. How long can you hold? Now do Kapalbhati or Bhastrika and then try to hold. The count time will be doubled. So exhale and then hold. Exhale and hold. Exhale and hold. And exhalation hold. As talking about holding, let me explain that too. So pranayama, any breath has 4 parts to it. If you think of it, right? One is inhalation. So there puraka, exhalation, rechaka, and there is a kumbhak. Kumbhak is the holding, which is the most important thing. ठीक है? Kumbhak is 2 types. एक होता है अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक, internal retention and external retention of breath. आप inhale करो and hold your breath. That is अंतर कुंभक. When you inhale and hold. Second होता है exhale and hold again. That is बाह्य कुंभक. तो प्राणायाम के breath के 4 पार्ट हो गए. Inhalation, exhalation and retention. Retention is 2 types, internal and external. Right. Actually कहते हैं प्राणायाम. The definition of pranayama is actually कैसे कहते हैं श्वास प्रश्वास गति विच्छेदन इति प्राणायाम. That means श्वास प्रश्वास, inhalation, exhalation, गति विच्छेदन. That means to stop it. उसको रोको. That's the pranayama. So anytime you do any kind of breathing exercise without holding in it, it is not pranayama actually.
बाकी इट्स गुड फॉर योर लॉट ऑफ अदर थिंग, इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं कुछ भी करने से। अनुलोम विलोम में ऑल यू डू इज लाइक लेफ्ट से करें, राइट से करें, राइट से करें, लेफ्ट से करें, राइट। दैट इज नॉट डूइंग प्राणायाम एक्चुअली, इट्स अ काइंड ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज and pranayama is different. To strengthen your prana, you have to hold your breath. तभी जो प्राणायाम हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम, there's a lot of ratio to it, and ratio holding gets increased as you gain more lung capacity to hold. You have more like capacity to hold, it gets increased. Finally, it should be 1:4:2 ratio. Actually 1:4:2:4. If you 1:4:2:4, that means if inhale for 4 seconds, 16 seconds you have to hold your breath. 8 seconds you have to exhale, again 16 seconds you have to hold. So inhalation, hold, exhale, internal retention, Antar Kumbhaka and Bahy Kumbhaka are holding. It should be 4:2 ratio, right? And that too, they say that you are doing real pranayama if you can do it for 20-second inhalation and multiplied by 4, 80 seconds tak holding, and then 40 seconds tak exhalation and 80 seconds tak holding. So 1:4:2:4 is the ratio that if you can maintain, but it's not very easy. To start with easy like 4, 8, 4, 8, अंतर कुंभका और बाह्य कुंभका के फायदे क्या हैं? किस- Like how is it different? Different. And फायदे क्या हैं? The फायदा तो प्राणायाम only of the healing also. Like जो प्राणायाम है 5 prana, right? It heals. What thing get healed when you inhale and hold? Is the lung capacity. In case your lung capacity, you can hold more oxygen in your body and all that. But see, any kind of physical disease, either is it physical in nature or internal, right? Internal, they're not disease, right? It's cardiovascular system or digestive system and all that. For every ailments, there is a pranayama to fix it. There's an asana to fix it too. So to get it healed from inside out, you do all that. In fact, it heals a lot of big ailments like Sanket ki mama used to do it for asthma, kumbhak. और breathing के लिए. हाँ, बहुत, हाँ. Breathing. बहुत फायदे होते हैं. So you can cure your like जो पुरानी ailments होती है ना, you can cure that through kumbhak. And retention, kumbhak is also very much helpful in any kind of spiritual advancement too. So a lot of there are bandhas, where you energy locking and all that. There are 3 type of locking: neck lock, stomach lock, and mula chakra, root lock, and all that. That's all for spiritual advancement as well. When you feel like जो भी different chakra activation. So it's a very detailed science. It's not like that you can understand in one thing, but it's also experience in nature too. As you go through the path, you do so many things, you start experiencing different things, then you realize, right? But it is also written in the book as well, right? How you do it. So. Good books na share. I have. Articles. Okay, so we did Kapalbhati, we did Bhastrika, right? Now third we'll do is called Nadi Sanchalana. अब इसके there are multiple variation to it. We'll do all the small variation. तो इसमें inhale exhale with the rhythm. तो उसमें क्या करते हैं हम force करते हैं ना, right? इसमें क्या करना है, बस force नहीं करना है, बस it's like हम first we'll do 3 round of it. In first round we'll block our right nostril, ठीक है? And inhale exhale only from the left but with the rhythm. तो उसके लिए मैं चलाता हूँ वो एक मेट्रोनोम में चलाऊंगा, ठीक है? वो जो भाई आपने पहले explain किया था 1:4:2:4 वो नहीं करेंगे? हाँ वो करेंगे, तो अनुलोम विलोम करना है, हम स्लो में करेंगे ना तो और सब करा के breathing. मैं सबको करा दूंगा, रिकॉर्ड भी है, then I'll tell you what to do actually later, okay? And then homework also. हाँ, then homework. And then checking the accountability. हाँ. वो ज़्यादा important है. The follow up. You take the notes. Follow up करना है. तो ठीक है. So क्या करेंगे ना हम आप कितने पे 110 पे है इसका मेट्रोनोम का स्पीड, तो you inhale and exhale with the beat. Any time that beats, that's when you have to exhale. तो उसके पहले inhale करना पड़ेगा, right? पहले आप पूरा synchronize करेंगे, inhale exhale दूसरा करके, but try to get in rhythm. जैसे down इसको तो देखो चल नहीं कर. ये ना देखो. ये inhale होगी सारा. exhale लेंगे. Exhale. हाँ देख. अच्छा हाँ, तो सीधा we are करना है. inhaling and exhaling. हाँ एग्जैक्टली, हाँ बट फोर्स नहीं लगाना. हाँ बट फर्स्ट राउंड करेंगे हम लोग राइट हैंड से दबाएंगे अपना राइट नॉस्ट्रिल, ओनली लेफ्ट नॉस्ट्रिल करेंगे, पहले बॉडी को सिंक कर लेंगे, उसके बाद करेंगे, ठीक है? एंड 20 टाइम्स करेंगे. फोर्स लगाना एकदम सिंपल. हाँ हाँ हाँ. एंड क्लोज योर आईज. नॉर्मली पाला में आई क्लोज कर लेते हैं.
ठीक है, हो रहा है, ठीक है ना। यू के राइट को दबा के हमने लेफ्ट से किया। इट्स आल्सो व्हेन यू ब्रीथ इन ब्रीथ आउट ओनली फ्रॉम द लेफ्ट दैट एक्टिवेट्स योर चंद्र नाड़ी, ठीक है। थोड़ी बात करते हैं चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी के ऊपर। टॉक I might sneeze because I have just so much of congestion. ना दैट्स ओके। Not fine. Yeah. नाउ अब हम अपना लेफ्ट नॉस्ट्रल को प्रेस करेंगे, ठीक है। आप कुछ बता रहे थे। हाँ, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी, हाँ। तो बेसिकली कभी तो एक से करते हो ना, इनहेल एक्सहेल, राइट। सो दैट्स व्हेन यू आर एक्टिवेटिंग दैट नाड़ी। सो आउट ऑफ 72,000 नाड़ी देयर आर 3 नाड़ीज व्हिच आर मोर इंपॉर्टेंट, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी एंड सुषुम्ना नाड़ी, ठीक है। तो पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है, बट यू नो सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, दे आर ऑल नाड़ी ऑफ एक्टिविटी। इसमें पूरा एक थीसिस ही है, मतलब यू नो, जिसमें कि इट्स लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग टू, यू नो, इसको तो सूर्य योगा, जिसमें इफ यू नो योर ब्रेथ यू कैन चेंज एनीथिंग, इवन यू कैन चेंज योर काला आल्सो। काला मतलब एनी काइंड ऑफ, तुम चेंज द टाइम आल्सो, कोई टाइम खराब आने वाला अगर आपका, बट इफ यू ब्रीथ इन अ सर्टेन वे यू कैन चेंज दैट एज वेल। या बिकॉज़ कम या ज्यादा हो जाएगी ना, वो सांस से कम होगी तो फिर नहीं वो नहीं, उसका वो मतलब नहीं एक्चुअली होता। यार तुम उसको बुद्धू बना रहे हो ना टाइम को बेसिकली। नहीं, बुद्धू मतलब इन नहीं, लेमन नहीं। लैंग्वेज। ये होता है ना चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी। ये कैमरा इस तरफ Oh मुड़- shit. I'm so sorry for bullying you. सो बोथ आर नाड़ीज ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। और ये बहुत ही मतलब वास्ट साइंस का दो एस्पेक्ट, मैथोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है और एक साइंटिफिक एस्पेक्ट है। तो मैथोलॉजिकल एस्पेक्ट का ये कहते हैं कि जब पार्वती जी गई धरती से ऊपर, तो लॉर्ड शंकर से पूछा उन्होंने कि यार मतलब धरती पे सब लोग बहुत परेशान है, मतलब राइट, एवरीबॉडी इज सफरिंग एंड पेन एंड ऑल दैट, व्हाई यू मेड दिस वर्ल्ड लाइक दैट, राइट। सो लाइक नो, वर्ल्ड इज फाइन, इट जस्ट बिकॉज़ पीपल डू नॉट नो देयर ब्रेथ। इफ यू नो योर ब्रेथ यू कैन चेंज एवरीथिंग। तभी आप बचपन में कहते ना कि घर से बाहर निकलो, दही खा के जाओ, या लेफ्ट पैर आगे निकालो, बहुत सारा अंधविश्वास है, राइट। एक्चुअली उतना अंधविश्वास भी नहीं है ये, बिकॉज सूर्य योगा में दैट्स व्हाट दे टॉक अबाउट, दैट इफ यू एक्ट एज पर योर ब्रेथ, sometimes something just happens just like that. If you're angry, you breathe faster. हाँ नहीं वो, every emotion- हाँ वो तो by default you know that, but सूर्य नाड़ी, right, नाड़ी of activity। कैसे अब जैसे खाना खा रहे हो, या बाथरूम आपको जाना है, या आपको समझो आपको खेलने जाना है, या कोई फिजिकल एक्टिविटी करना है, और आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव होगा ना, तो यू विल परफॉर्म बेटर। पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है, बट आप यू डू नॉट ब्रीथ फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल। हमेशा आप एक आपको अभी चेक कर लो आप, Right. आपका एक एक्टिव होगा, एक आपका डोर्मेंट होगा, एक डोमिनेंट होगा, ठीक है, हमेशा होता है, बिकॉज दैट्स द नाड़ी ऑफ एक्टिविटी। मतलब हमेशा एक ही होता है। हाँ? मतलब एक पूरा खुला होता है, एक थोड़ा पार्शियल खुला। सो राइट वो एक अलग अलग हमेशा सेम ही होता है। नहीं हमेशा नहीं होता, हमेशा नहीं। नहीं हमेशा सेम नहीं होता। ये एवरी 90 मिनट्स इट चेंजेस बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और आपको चेक भी कर सकते हो आप कि मतलब am I breathing right or not. The way you can check, there are 5 times in a day when you can check am I breathing right or not. Those 5 times are sunrise time, sunset time, 12 o'clock in the afternoon, and moonrise and moonset. इसमें you can check and how to check. This is a prana calendar where you can check कि आज अगर हम केरी में बैठे हुए हैं, सनसेट सनराइज हो रहा है 6:30 पे, राइट, तो एंड जो होता है ना द्वितीया तृतीया, तो 1 3 5 का डेट पर है, मैथ है इसका, यू कैन फाइंड आउट कि आज के हिसाब से आज 6:30 को मेरा राइट मोर एक्टिव होना चाहिए, एंड इट विल बी एक्टिव। आप चेक करो, It's like a इसको बोलते हैं पार्ट ऑफ सूर्य योगा, when you can check yourself are you in sync with the nature or not. If you are not, you can change it also, ठीक है। चेंज करेगा, जिससे अब देखा होगा कभी जो योगी लोग होते हैं ना, एक लेग चलते हैं, एक डंडा टाइप, राइट है ना, नहीं डंडा लगाते, राइट। सो यहाँ पे हमेशा राइट पे लगाए रहते हैं वो लोग, ठीक है। तो राइट पे क्यों लगाते हैं, डंडा का शेप ऐसा क्यों होता है, जो शेप ऐसा होता है ना, जब द मोमेंट यू पुट ऑन योर राइट आर्म पिट यहाँ पे, तो आपका लेफ्ट नाड़ी एक्टिव हो जाता है, लेफ्ट वाला, which is लेफ्ट एक्टिव हो तो बहुत अच्छा, हमेशा मतलब मोस्टली खुला रहे तो बेटर है। राइट अगर बहुत देर से खुला आपका, इट इज ए प्रॉब्लम। मतलब बॉडी में सूर्य नाड़ी बहुत, मतलब फायर इज नॉट गुड फॉर बॉडी ऑल द टाइम, ओनली फॉर एक्टिविटी इट्स गुड बट नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम। लेफ्ट इज लाइक नाड़ी ऑफ क्रिएटिविटी, calmness, peace, all that, right? So left is good, right is not that good. तभी वो राइट पे दबाया जाता है कि लेफ्ट उनका एक्टिव रहता है,
मोस्ट ऑफ टाइम। और एक आसना भी होता है उसको बोलते हैं पदाधिरासना, व्हेन यू सिट ऑन योर लाइक वज्रासना, और राइट से यहाँ पे, और इसको ऐसे दबाओगे ना यहाँ पे, तो जहाँ इसको राइट को प्रेस करो लेफ्ट एक्टिव होगा, लेफ्ट को प्रेस करो राइट एक्टिव होगा, डंडा लगा लो ऐसे तो एकदम होगा। हाँ, बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं आप, इसको दबा के भी चेक कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो। हाइकिंग कर रहे हो राइट वाली स्टिक तो राइट यूज नहीं प्रकाश भाई एक क्वेश्चन, प्रकाश भाई एक क्वेश्चन, तो हाउ डू वी फाइंड कि अभी कौन सा नाड़ी एक्टिव है? हाँ, तभी तुम चेक करो, अब तुम चेक करो, ये रहा, चेक करो दोनों ज्यादा सांस आ रहा है। किसमें, तो अब तुम यहाँ पे इसको फिंगर को भी ना, फिंगर को यहाँ रख सकते हो, सांप नीचे नीचे नीचे, ठीक है। मेरा लेफ्ट ही ठीक मेरा है। लेफ्ट हाँ तो ठीक है, लेफ्ट है, हाँ लेफ्ट है ना, हाँ तो and सब लोग एक सेम होगा उस 5 टाइम पे। हाँ एग्जैक्टली, इफ यू आर हेल्दी, कोई आपको डिजीज ऐसा कुछ नहीं है ना, देन 6 बजे मेरा लेफ्ट एक्टिव होता है, 6 बजे तो इट विल बी सेम फॉर ऑल। अगर नहीं है देन देयर सम प्रॉब्लम, राइट, और यू कैन चेंज इट आल्सो। अब कभी सोचा है हम लोग जब सोते हैं ना तो कहते हैं कि एवरीबॉडी सेज, इवन मेडिकल सेज, यू ऑलवेज स्लीप ऑन द लेफ्ट साइड, करवट लेके, राइट। तो लेफ्ट साइड लेके क्यों सोना चाहिए? यहाँ कहते हैं कि बिकॉज योर बॉडीज ऑर्गन्स आर अलाइंड इन अ वे, दे आर मोर रिलैक्स्ड। जो अंदर के सारे ऑर्गन राइट करोगे दे आर मोर स्ट्रेस्ड, तो हमेशा लेफ्ट करवट सोना चाहिए, ठीक है। बट सोचो जहां लेफ्ट सोते हो तो क्या होता है, नॉर्मली हमारा योगदान क्या बोलता है, सेम थिंग, इट सेज द सेम थिंग टू, कि आप लेफ्ट में करवट में सो। द मोमेंट आप लेफ्ट सोगा तो हाथ दबेगा ना यहाँ पे, जहां ये दबेगा तो राइट एक्टिव हो जाता है। But I heard the other way. नहीं, I heard the other way. कहाँ पे? I think because I don't know, and I did on myself. So I sleep better on my right because all these organs are not stressed out because they breathe better. They are heart pump better because it's on the left, and you are just resting on your right, right? But if you just push it down on your left, I don't know. I just आप feel पढ़ना फिर से, अगर आप लेफ्ट सोगे ना, दैट्स व्हाई रिकमेंडेड। इवन साइंस में ही बोलता है, आपको यहाँ भी बोलते हैं मोस्टली, और इवन आपको योगा में भी यही बोलते हैं। Right. But right is good. नहीं बेटर कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ बेटर ये नहीं है। लेफ्ट राइट दोनों का अपना रोल है, राइट, बट व्हेन यू स्लीप दैट टाइम योर राइट शुड बी मोर एक्टिव। आप घर आके चेक करना रात में, जब और आपको सही में नींद आ रही होगी ना, तो राइट आपका एक्टिव ऐसे भी होगा। बॉडी नोज, इफ यू आर स्लीपिंग तो आपका राइट एक्टिव होगा। आपको कोई बहुत भूख लगी है ना, आपको दिखना आपको राइट एक्टिव होगा। आपको बाथरूम जाना है जोर से, फिर भी राइट एक्टिव होगा, ठीक है। तो दीज आर द एक्टिविटीज व्हेन राइट इज एक्टिव बाय डिफॉल्ट। अगर नहीं आप एक्टिव कर लोगे ना आप इसको, देन इज बेटर बेसिकली। राइट काम कराता है। राइट इज नाड़ी एक्टिविटी कहते हैं, and left is like calmness, peace and all that. और उसके जैसे 90 मिनट का एक साइकिल होता है, राइट, जो स्विच होते रहता है, लेफ्ट से राइट होते रहेगा स्विच। किसी में 90 हो, किसी में 100 मिनट हो जाओ। अब बीच में जब स्विच होता है ना, then there's a 4 minute duration when the third nadi, सुषुम्ना नाड़ी is active. कहते हैं that's a time for meditation actually. You don't do any activity at all. सुषुम्ना, हाँ होता है। कभी-कभी आप चेक करोगे दोनों ना, नहीं कभी कभी चेक करो तो इट्स वेरी हार्ड फॉर यू डिस्टिंग्विश विच इज मोर डोमिनेंट। इफ यू फाइंड दैट कि दोनों में से बहुत डिफिकल्ट रहा मेरे को फाइंड आउट करना कि कौन मोर डोमिनेंट है, देन मे बी इट्स सुषुम्ना नाड़ी इज फ्लोइंग व्हेन बोथ आर फ्लोइंग इक्वली। and that's in the morning usually. नहीं वो उनका जब स्विच होता है ना, लेफ्ट टू राइट, हाँ उस 4 मिनट का टाइम होता है, राइट। सो दो नाड़ीज का है सब, 3 नाड़ीज। तो अभी वो क्या कर रहे थे, उसके पहले कौन सा प्राणायाम कर रहे थे? एक साइड किया। हाँ, लेफ्ट का नहीं किया था ना हम लोग, हाँ। तो नाउ ब्लॉक योर लेफ्ट नॉस्ट्रल, हाँ, एंड वही इसको करता हूं, जस्ट ब्रीथ इन ओनली फॉर द राइट। हाँ लेफ्ट से, हाँ लेफ्ट को प्रेस करो, हाँ। एक सेकंड ब्रेक, इसमें क्या है, आप सोच के आप यहाँ अब सर को आप सिर्फ हेड को सामने रखना है, ठीक है, हाँ। और हमेशा देखो जब राइट को प्रेस करेंगे ना, तो हमेशा राइट हैंड थंब को यूज करेंगे, और रिंग फिंगर को यूज करेंगे, इस रिंग फिंगर को लेफ्ट से, मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रल को, ठीक है। अब मिडिल ये फिंगर कोई यूज नहीं है, ओके, ओनली वन थंब और रिंग फिंगर, लाइक, ठीक है ना, हाँ। तुम भी मिडिल फिंगर यूज कर रही हो, रिंग फिंगर, So we ठीक है। don't change the hand. Yes. ऑलवेज राइट हैंड, ऑलवेज राइट हैंड, Yes. हाँ। Yes. क्योंकि आपका उसका पोजीशन में सही होता है ना, पोजीशन ऐसे ही होगा, राइट। I change the hand. We don't have to change the hand. We have to use the. आप भी लेफ्ट हैंड यूज कर रहे हो, आदत डालने के लिए ना इसको काफी लगा हाँ, दो। see, Okay, okay. We have to use only one hand.
राइट हैंड यूज करते हैं हमेशा all the time right hand. पहली बात all the time right hand. राइट हैंड का थंब है हमेशा आपके राइट पे रहेगा, राइट, रिंग फिंगर रहेगा यहाँ पे। नहीं फिंगर ये पे तो ये दो यहाँ रहते हैं ना प्रकाश, ये दो यहाँ रहते हैं। हाँ वो इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है, पर रख भी सकते हो, कोई बात नहीं है इसमें। कोई फर्क हाँ, नहीं बट इसको बेसिकली सीधे रखना थंब एंड रिंग फिंगर यू हैव टू यूज इट, ठीक है। ये सही जगह जानी चाहिए। हाँ, और थोड़ा अवेयरनेस भी होता है, मतलब ऐसा नहीं कि हाथ गिर रहा है, आप गिर रहे हैं, थोड़ा बॉडी को स्ट्रेट और थोड़ा अवेयर रहेगा, ठीक है। चलो लेफ्ट को प्रेस करिए रिंग फिंगर से। Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, exhale. ठीक है? Now relax. Can you feel that my air is going here and then coming out? Yeah, because I think it's the stomach, right? It has to. Yep. मेरे All नीचे right. भी जाती है यहाँ पे भी जाती है। Honestly. हाँ हल्का सा लगेगा उसमें, इसका मतलब है बहुत ट्राई, बहुत कोशिश में नहीं करना, बस हल्का सा ना। मेरा तो यहीं तक ही रहता है। हाँ, कोशिश यहीं तक लाना फिर वापस। हाँ, इसमें दिस इज नॉट भस्त्रिका ना, और दिस इज नॉट कपालभाति, राइट। Yeah. हल्का हल्का करना है, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। तो यहीं रहता है। हाँ बस वो छोटा होगा, वही छोटा होगा, ठीक है। हाँ, अब थर्ड राउंड में करेंगे हम लोग जिसपे विदाउट ब्लॉकिंग एनीथिंग। ऊपर वो बोल रही मुझे निकाल दो मम्मी ये ऊपर। ठीक है, थर्ड करेंगे जिसपे विदाउट ब्लॉकिंग एनीथिंग, जस्ट इनहेल एक्सहेल विदाउट ब्लॉकिंग, ठीक है। जस्ट हाँ, आप क्लोज योर आइज, हाँ। पेट थ्रस्ट नहीं देना, पेट पे थ्रस्ट नहीं आना, सिंपल इनहेल एक्सहेल। ठीक है, समझ में आया? But पेट पे तो जाते ही ये तो नहीं, बहुत हल्का सा यहाँ पे जाएगा, बहुत हल्का सा जाएगा, बट इज नॉट लाइक ऐसा नहीं है, but slide. ऐसे नहीं करना, हल्का तो मूव होगा, ठीक है। It was more on the chest here. हाँ हाँ, मतलब इसको तो शैलो करना, मतलब हाँ राइट। मेरा जाता है। शोल्डर तक भी यहाँ थोड़ा स्टमक तक भी जाता है। हाँ थोड़ा जाएगा। अब इसी को हम लोग करेंगे फास्ट ब्रीदिंग, जिसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अभी हमने अब सीख लिया कैसे करना, राइट। हम लोग मे बी ब्रीदिंग लाइक 1 सेकंड में एक बार, राइट, स्लो। अब उसी को समझो कि फास्ट करना, 1 सेकंड में आपको 3 टाइम करना है, 1 सेकंड में 3 ब्रेथ। इट्स लाइक, अपने डॉग के जैसे। ठीक है, ठीक है। इसमें है ना कि आपका जो ब्रेथ है, जस्ट इमेजिन, अभी करो मत, इमेजिन कि आपका ब्रेथ जो है ना इज नॉट गोइंग बियॉन्ड योर अपर लिप्स, जो यहीं पे उसको लेके भी ऊपर तक कर खींच देना, राइट। हाँ, सर हेड टू हेड को सीधा रखना है, और मुंह को बंद करना है, ठीक है। हाँ, ट्राई करो फिर, जो मैं करता हूँ इसमें वीडियो होते ही है। अब बस थोड़ी ट्राई करो, एक मिनट ट्राई करेंगे, ठीक है। जस्ट आइए लाइक, गुड जॉब, हाँ, गुड जॉब रश्मि, गुड जॉब। हाँ, मुंह से नहीं It requires practice. Just practice, The rhythm. हाँ, मुश्किल है। Instead of now, it's just Okay. close like that. okay, now relax, उसका सब बहुत खुला होता है। now relax। मैं भी close Your से देखती हूँ। nose like is in तो इसीलिए total- इसीलिए जितना ही प्राण सूर्य नाड़ी संचालन ना ऑन फायर ऑफ ब्रेथ, इसके लिए पहले कहता है कि द प्रिपरेटरी थिंग इज टू क्लीन योर नॉस्ट्रल with jal neti, sutra neti and all that. These are the kriya that you have to do it before you do that, because nostril gets open, then you can do it faster. और ये जो इसको कहते हैं फायर ऑफ ब्रेथ, इसका बहुत रोल है। बहुत आपने देखा होगा कि जैसे सदगुरु के आश्रम में वहाँ लोग करते हैं ना, तो दे स्टार्ट क्राइंग एंड ऑल दैट, बहुत होते हैं इमोशनली, दे गेट वेरी, क्या बोलो उसको, दे गेट वेरी इमोशनल, राइट, आफ्टर डूइंग ऑल दैट। दिस इज द टाइम व्हेन इट हैपेंस एक्चुअली, ठीक है। दिस व्हेन यू अवेकनिंग भी लोग इसी टाइम इसी में होता है। जैसे सुदर्शन क्रिया कराते हैं रविशंकर ना, तो ये भी दिस इज वेरी इसका उसका पार्ट है। सदगुरु कराते हैं, संभवी महामुद्रा, उसमें भी ये कराते हैं, ठीक है। और जैसे हम लोग करने गए थे वहाँ पे
सदगुरु के ईशा आश्रम फाउंडेशन ईशा फाउंडेशन टेनेसी में, हाँ। inner injury. तो इसके बाद क्या होता है, मतलब ये 4 दिन तक कराएंगे, 3 दिन, चौथे दिन इतना देर कराएंगे ना ये, इसमें क्या होता है, एक टाइम आता है ना व्हेन यू फील लाइक यू आर गॉन, और आप इसी को करते रहोगे ना, प्रैक्टिस कर लो, 10 मिनट तक करते रहो, देयर विल बी टाइम कम व्हेन यू विल बी गॉन मतलब गॉन मतलब नहीं, गॉन मतलब कि आप ट्रांसेंड हो जाओगे, लाइक आपको नेक्स्ट 10 मिनट्स तक कोई आपको पता नहीं चलेगा आप क्या कर रहे थे, मतलब यू डोंट हैव सेंस ऑफ टाइम एक्चुअली, और आप सो भी नहीं रहे हो उस टाइम, लाइक आउट ऑफ बॉडी। तो मतलब आई फेल्ट द सेम थिंग टू, मेरे सब लोग को ऐसे फील हुआ। देन यू फील सो पीस इन योर माइंड, लगा कुछ है नहीं दिमाग में, थॉटलेस माइंड। तो जब वहां से करके आया ना, देन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट, यू नो, मोर एंड मोर, थोड़ा बहुत गूगल किया, कुछ खोल के, देन आई फाइंड आउट। तो क्या होता है ना कि एक ब्रेथ का एक यूनिट है, उसको कहते हैं अंगुला। मतलब समझो कितने स्मार्ट है, दे आल्सो न्यू कि ब्रेथ का एक यूनिट भी उन्होंने लगा के रखा है। जब ब्रेथ ब्रीथ करते हो, डीप ब्रीथ, तो जहां तक आपको फील हो रहा है एयर, दैट इज द लेंथ ऑफ द ब्रेथ। और हर एक लेंथ का कोई ना कोई माइंड पे थोड़ा प्रभाव पड़ता है उसका, राइट। जब शॉर्टर होता है ना, when you get shorter and shorter and shorter and shorter and shorter, then this time comes when you get detachment. Who body out of body OBE kind of experience you will get. Even in the book also, you know, कि फास्ट करते करते, हाँ ये वाला, तो इसको फास्ट करोगे ना, बहुत फास्ट करते करते, बट तो कहते हैं कि मतलब these are very advanced practices, आपको इसके लिए करने की जरूरत नहीं है, but I'm just telling you, this is also one of the fast breathing thing, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, 4 किए अभी, राइट। कपालभाति किए, भस्त्रिका किए, और नाड़ी संचालना किए, और उसका फास्ट ब्रीथिंग हम लोग ये कर रहे हैं। I have a question. So, why do you feel like out of body experience? Is it like when you're breathing like so short that you just disconnect? When you just disconnect, that's when OBE kind of experience happens when you Oxygen in it, right? But then तो फिर नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिलता, नहीं वो साइंटिफिक, then you don't try to add oxygen, nitrogen in this one. This is not like that, okay? This is just, these are spiritual practices, you know. We are all basically spirits. कहते हैं ना, we are spirit having a human experience rather than having you are human as a spirit experience, right? Intrinsically we are spirit. थोड़े दिन के लिए you are human. तो सब चीज को you cannot have a reasoning कि ऑक्सीजन कम हो रहा था या नाइट्रोजन बढ़ जा रहा था. That's what neurologist says. But this happens. You have to justify it scientifically. When people get, you know, like I've seen people going crazy doing this, you know all those वहाँ जाओगे ना, तो some people get very crazy also in this. Crazy means you connect with the universe. The people will say crazy, but at that moment you get. Yeah, well, because some people start crying, their tears start coming from your It's a eyes high for no energy. reason. You know, all those things that does happen when you keep doing सांस this. नहीं आ रहा था. It is not like you're in pain. No, it is not. No. It doesn't. I mean, it's not because of pain. आपके आंखों में आंसू आ रहे हैं. अच्छे टाइम में तो आंसू आ रहे हैं. सांस नहीं आएगा तो मोना आप तो ऊपर चले जाओगे ना. वही तो कह रही आउट ऑफ बॉडी, वो उसको Out of body. पहुंच गई है. नहीं हम बाहर जाके अंदर नहीं आ रहे. ठीक है. कराएंगे. तो ये सब एडवांस प्रैक्टिस है. कभी आप और योगा करोगे ना, देन बताएंगे आपको गुरु लोग जो है. बट आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज़ दीस आर ऑल पार्ट ऑफ द फास्ट ब्रीदिंग. ठीक है. अब लोग करेंगे स्लो ब्रीदिंग. ठीक है. तो बहुत सारे स्लो ब्रीदिंग है. तो वी स्टार्ट विद सम सिंपल स्लो ब्रीदिंग. उसको सहज पूरक ब्रीदिंग. ठीक है. सिंपल. ठीक है. ट्राई करो हम सिंपल इनहेल, एक्सहेल. ठीक है. तो स्लो ब्रीदिंग में मतलब बेसिकली यू ब्रीथ स्लो डीप लॉन्ग. ठीक है. इनहेल एंड एक्सहेल. और कभी आप नोटिस करना कि द मोमेंट यू पुट योर माइंड टू इट, आई एम ब्रीदिंग फ्रॉम माय टमी, यू स्टार्ट ब्रीदिंग फ्रॉम माय टमी. आई एम ब्रीदिंग फ्रॉम चेस्ट, यू स्टार्ट ब्रीदिंग फ्रॉम योर चेस्ट. आई एम ब्रीदिंग फ्रॉम थ्रोट, यू स्टार्ट ब्रीदिंग फ्रॉम. यू फील लाइक दैट टू, राइट. हम करेंगे उसको एक्सपीरियंस. सबसे पहले चीज सीखेंगे हम लोग योगिक ब्रीदिंग. ठीक है. योगिक इट आल्सो सेज अ 3-part ब्रीदिंग. एक होता है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, फिर होता है आपको थोरैसिक ब्रीदिंग जो कि आपका रिब केज के यहाँ से और चेस्ट पे. ठीक है. तीनों फिर कंबाइन करके एक तीनों कंबाइन कर दो, जिसको योगिक ब्रीदिंग. तो पहले हम लोग फील करेंगे
एब्डोमिनल ब्रीदिंग। ऐसे दो चीज हमेशा आप याद रखना कभी भी कि हमेशा नाक से ही ब्रीथ करना है कभी भी। नॉर्मली क्या होता है आप नोटिस नहीं करते हो बट यू स्टार्ट ब्रीथिंग फ्रॉम माउथ, राइट। नॉर्मली पैसिव ब्रीदिंग करते हैं, जब भी एक्टिव ब्रीदिंग करेंगे विल ट्राई टू ब्रीथ फ्रॉम नॉस्ट्रिल। जो ब्रेथ बुक है ना उसमें बेसिकली एंड लॉट ऑफ जो प्रॉब्लम होता है लोगों को इसलिए बिकॉज पीपल डोंट ब्रीथ राइट, जस्ट ब्रीथ फ्रॉम द माउथ, हमेशा नाक से मतलब कॉन्शियसली। सेकेंड होता है कि ट्राई टू एब्डोमिनल ब्रीदिंग मोर, ठीक है। हम लोग यहाँ से ब्रीथ आपका यहीं पे आता है ऊपर चला आता है, राइट। जहाँ आप डीप करोगे तो आपका एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जब आपका बाहर जाएगा अंदर आएगा। बच्चा भी ऐसे ही ब्रीथ करता है, कभी देखोगे ना, कभी अपने आप को भी रिकॉर्ड करोगे, आप डीप स्लीप में हो ना, अगर कैमरा करो तो आप भी ऐसे ही ब्रीथ करते हो जब आप डीप स्लीप में रहते हो, ठीक है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। बट जब अवेक रहते हो तो चूंकि दिमाग आपका कुछ चलते रहता है दिमाग में, तो वो शैलो करते हो ब्रीदिंग, ठीक है। तो दो चीज कभी भी दिन में बैठ के कॉन्शियसली अपना हम डीप ब्रीथ कर रहे हैं, राइट। तो पहले हम करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो अपने हाथ को ना हम यहाँ पे रखेंगे, नेवल के थोड़ा नीचे यहाँ पे, ठीक है। एंड जब इनहेल करेंगे तो देख अब थोड़ा बाहर जाएगा अंदर आएगा, उसको फील करेंगे, ठीक है। हाँ, इनहेल, जस्ट फील द एयर पासिंग थ्रू योर एब्डोमेन। हाँ, do it few times. फील हो रहा है ना, टमी बाहर जा रहा है अंदर आ रहा है, राइट। दैट इज एब्डोमिनल ब्रीदिंग, ओके। अब हम सेम हैंड को रखेंगे यहाँ पे, जो मतलब टमी के ऊपर थोड़ा चेस्ट के थोड़ा नीचे, यहाँ रिब के जहाँ होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगेन आप थोड़ा डीप करो, इनहेल, उसको फील करो वहां पे एयर इज पासिंग थ्रू योर लंग्स। You feel it getting expanded, right? As you inhale, फील हो रहा है ना, यू फीलिंग दैट, राइट। अब तीसरा ट्राई करेंगे हम लोग, सेम हैंड को हम रखेंगे चेस्ट पे, ठीक है। तो इसमें आपको जब इनहेल करते हो लास्ट में हल्का सा जैसे आपका जस्ट इमेजिन आपका इनहेलेशन कंप्लीट हो चुका है, राइट। एक थोड़ा सा और एफर्ट डालो, देन नोटिस कि यहाँ पे पड़ेगा है ना, थोड़ा शोल्डर भी आपको थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा जब करोगे ब्रीथ। सबका क्लियर है, ठीक है। अब एक बार हम लोग 3 बार करेंगे, विल ट्राई टू मिक्स इट अप ऑल टुगेदर एंड मेक इट अ योगिक ब्रीथिंग। तो कैसे करना है, बेसिकली समझो कि आपको पूरा जो ब्रेथ ले रहे हो ना उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट में आप फील हल्का सा एक इन वन इनहेलेशन, थोड़ा सा आपको फिर यहाँ पे एक्सपैंड होगा। लास्ट में यू हैव टू मेक लिटिल मोर एफर्ट टुवर्ड्स द एंड टू जस्ट एक्सपैंड योर चेस्ट आल्सो, अथवा शोल्डर के ऊपर चला जाएगा, आप चेस्ट पूरा एक्सपैंड करोगे तो, ठीक है। तो ट्राई करो फील करने का, बट दिस थिंग रियली प्रैक्टिस से भी होता है धीरे धीरे, ठीक है। आप देखो बस पूरा हाथ पे यहाँ रखे, जस्ट फील, टुवर्ड्स द एंड जस्ट इनहेल लिटिल मोर, कि आपका चेस्ट भी थोड़ा एक्सपैंड हो, चेस्ट के अपर लंग्स, हाँ, एंड शोल्डर थोड़ा ऊपर जाएगा। एंड एक्सहेल उसी ऑर्डर में उसको नीचे भी करेंगे, पहले चेस्ट, फिर आपको लंग्स नीचे, एंड देन एब्डोमेन। डू इट फ्यू टाइम्स। बहुत एफर्ट करना नहीं है, एकदम सख्त करने की कोशिश कर रहे हैं, बस स्लो धीरे 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 इसको फर्स्ट फील दैट यू आर इनहेलिंग फ्रॉम टमी, देन यहाँ पे रिब केज के नीचे, एंड देन क्लैविकुलर कर थोड़ा सा योगिक, बिल्कुल योगिक ब्रीथिंग।
when you breathe in all from your all entire body, तीनों 3 parts breathing बोलते हैं उसको, योगी breathing बोलते हैं, ठीक है? ओके, अब थोड़ा हम लोग करेंगे एक प्राणायाम होता है समवृत्ति प्राणायाम, जिसमें हम लोग बॉक्स ब्रीदिंग, इट्स वेरी गुड फॉर योर लंग्स आल्सो व्हेन यू स्टार्ट होल्डिंग अप नाउ, राइट? थोड़ा होल्ड करेंगे, पोज करेंगे, ओके? तो विल डू फ्यू राउंड्स ऑफ समवृत्ति प्राणायाम, इट्स बॉक्स ब्रीदिंग, ठीक है? तो बॉक्स ब्रीदिंग के मतलब लाइक अ बॉक्स, यू ब्रीथ इन अ बॉक्स। सो इनहेल करेंगे सर्टेन टाइम तक, होल्ड करेंगे, एक्सहेल करेंगे, फिर होल्ड करेंगे, ओनली 4 काउंट तक करेंगे, सो दैट इज वेरी वेरी कंफर्टेबल, ओके? अगेन क्लोज योर आईज, so inhale for 4, 3, 2, 1, hold your breath for 4, 3, 2, 1, exhale for 4, 3, 2, 1, again hold for 4, 3, 2, 1, one more round, inhale for 4, 3, 2, 1, hold your breath for 4, 3, 2, 1, exhale for 4, 3, 2, 1, again hold for 4, 3, 2, 1. Next round, inhale again, 4, 3, 2, 1, hold your breath for 4, 3, 2, 1, exhale for 4, 3, 2, 1, again hold for 4, 3, 2, 1. Now relax. I was just reading about this Samavritti Pranayam. कहते नेवी सील है ना, they use that a lot to calm their mind. If you do for few minutes, like 3-4 मिनट ना, you will feel very calm, दिमाग थोड़ा क्वाइट हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया समवृत्ति प्राणायाम। अब लोग कुछ और ब्रीदिंग करेंगे, एक उसके बाद है चंद्र भेदन और सूर्य भेदन प्राणायाम। तो राइट हैंड से अपना राइट नॉस्ट्रिल को दबाएंगे, और जब ब्लॉक भी करते हैं ना, तो ब्लॉक करने ये नहीं कि हम दबा के नाक को टेढ़ा ही कर देते हैं, ठीक है? हल्का सा दबाएंगे बस, यहाँ पे ऊपर नाक नोटिस करना, नाक के ना यहाँ पे ऊपर हल्का एक बोन होता है हल्का सा, उसको आप हल्का दबाओगे ना, बस एकदम ब्लॉक हो जाएगा, अच्छी तरह ब्लॉक हो जाएगा। नीचे दबाओगे तो बहुत प्रेस करना पड़ेगा, हाँ, जस्ट बोन को हल्का सा प्रेस करोगे ना, दबा हो जाएगा, ठीक है? तो पहले हम लोग लेफ्ट से राइट को ब्लॉक करेंगे, ओनली लेफ्ट से करेंगे 3 बार, फिर लेफ्ट को ब्लॉक करके राइट से करेंगे 3 बार, ठीक है? तो फर्स्ट ब्लॉक योर राइट नॉस्ट्रिल, हल्का सा इनहेल फॉर 5, 4, 3, 2, 1, exhale for 5, 4, same, 3, 2, 1, again inhale for 5, 4, 3, 2, 1, exhale for 5, 4, 3, 2, 1, one more, inhale for 5, 4, 3, 2, 1, exhale for 5, 4, 3, 2, 1. Now switch your nostril, switch करेंगे, अब रिंग फिंगर से अपना हम लेफ्ट को दबाएंगे, और राइट से मिडिल फिंगर कर रहे हो, रुचि क्या आप हमेशा रिंग फिंगर, इनहेल फ्रॉम द राइट, 5, 4, 3, 2, 1, exhale 5, 4, 3, 2, 1, again inhale 5, 4, 3, 2, 1, exhale 5, 4, 3, 2, 1, one more, inhale 5, 4, 3, 2, 1, exhale 5, 4, 3, 2, 1. Now relax. तो जब हम राइट से इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, दैट इज राइट, मतलब क्या बोला था मैंने, सूर्य नाड़ी, राइट? तो वो सूर्य भेदी प्राणायाम, एंड लेफ्ट इज लाइक चंद्र भेदन, इट इज मून, ठीक है? These are all the balancing of our nadis, so that हमारा नाड़ी जो बैलेंस रहे दोनों, and you know like a cycle it keeps going, you know. Okay, फिर हम नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे, उसको कहते हैं विलोम प्राणायाम। तो विलोम प्राणायाम क्या करते हैं, हम उसका हाफ ही करेंगे, हम लोग स्टेप में ब्रीथ करते हैं। से इनहेल स्टेप, इनहेल पॉज, एक ही इनहेलेशन है पर उसको पॉज रोक के कर रहे हैं, ठीक है? टिल यू कंप्लीट योर इनहेलेशन, देन फाइनली हम लोग अच्छा सा एक पॉज लेंगे टुवर्ड्स द एंड, एंड देन एक्सहेल करेंगे स्लो एंड डीप, ठीक है? ठीक है, तो अगेन शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है? इनहेल पॉज, इनहेल पॉज, इनहेल पॉज, इनहेल पॉज। Now hold there, 3, 2, 1. Now exhale, slow and deep, 5, 4,
3, 2, 1. Next round again. Inhale, pause, inhale, pause, inhale, pause, inhale, pause. Now hold your breath at the end. Exhale, 5, 4, 3, 2, 1. Third round. Again, inhale, pause, inhale, pause, inhale, pause, inhale, pause. Hold it there. Now exhale for 5, 4, 3, 2, 1. Now relax. ठीक है, इसको बोलते हैं विलोम प्राणायाम. इसी का एडवांस वर्जन है. आप इनहेल में भी पॉज करो, एक्सहेल में भी पॉज करो, बट स्लोली ना कैन डू दैट. नेक्स्ट करेंगे हम लोग उज्जयी प्राणायाम बोलते हैं इसको. उज्जयी. तो उज्जयी इज बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब ब्रेथ एक्चुअली यू आर ब्रीदिंग फ्रॉम योर थ्रोट. ठीक है, बट थ्रोट से आप ब्रीथ तो कर नहीं सकते. आप छेद तो है नहीं कि आप इनहेल करोगे, राइट? तो हम करना तो नाक से ही है. यू फील लाइक यू आर इनहेलिंग फ्रॉम द थ्रोट. सो इवेंचुअली क्या होगा कि आवाज ठीक से करने लगोगे, द साउंड गेट्स चेंज्ड. ठीक है, एंड इट इज वेरी क्लोज टू द ओशन का साउंड. इसलिए इसको बोलते हैं ओशन ब्रीज ब्रेथ और विक्टोरियस ब्रेथ. का बहुत सारा नाम है. उज्जयी मतलब विक्टोरियस ऐसे भी होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट फर्स्ट अपना दोनों हाथ को यहाँ रखेंगे, रख लो यहाँ पे. ठीक है, एंड ट्राई टू जस्ट ब्रीथ. कि हम यहाँ से करें लाइक एज इफ यू आर सकिंग द एयर फ्रॉम द थ्रोट. ठीक है, तो एक आवाज आएगी एक अजब डिफरेंट तरीके की. तो थोड़ा हम कंस्ट्रक्ट करेंगे मसल अपना थ्रोट का एंड ट्राई टू इनहेल फ्रॉम देयर. Just feel the air passing through your throat. Few more times. Now relax. पता चला है थ्रोट का, उसको थ्रोट. हाँ हाँ, तो आवाज आएगी इसमें. हाँ, तो इसको जब when you feel more clarity, तो actually this breath is also कहते हैं इसको मंत्रा भी होता है. उसमें जब से आप inhale करोगे ना, the sound is very close to the mantra so and hum. कहते हैं soham meditation. So that's what we do. So hum. धीरे धीरे you start noticing that actually the sound is very close to the mantra. क्योंकि this mantra is always with you from birth to death. When you're breathing, you are doing this mantra. So hum, so hum, so hum, as you inhale and exhale. ठीक है, okay. Now last slow breathing करेंगे हम लोग. Before we do the Tammo breathing, we'll do this अनुलोम विलोम. ठीक है, जो कि बहुत ही पॉपुलर है. ठीक है, बाकी जितना भी है ना सब काइंड ऑफ क्या बोलो उसको एड ऑन टाइप है. बट अनुलोम विलोम इज द मेन प्राणायामा, जिसको हम लोग सिंपल तरीके से भी करते हैं. एज यू लर्न अदर थिंग्स यू कैन इनकॉर्पोरेट सो मेनी थिंग इन दैट वन. यू नो, होल्डिंग इनकॉर्पोरेट करते हैं, बंदाज करते हैं इनकॉर्पोरेट, बहुत सारी चीजें करते हैं इनकॉर्पोरेट, ऑल इन अनुलोम विलोम. तो हम पहले क्या करेंगे, 3 राउंड सिंपल करेंगे ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग. इसको एक्चुअली नाम है इसका नाड़ी शोधन प्राणायाम. ठीक है, नाड़ी शोधन मतलब वही चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी कि वो ठीक से बॉडी में फ्लो हो हमारा. ठीक है, उसी के लिए करते हैं ये अनुलोम विलोम. तो उसका एक सीक्वेंस होता है. हमेशा लेफ्ट से शुरू करते हैं, लेफ्ट पे एंड होता है. तो इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम द राइट, इनहेल फ्रॉम द राइट, एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट. ठीक, ये सीक्वेंस है. पहले 3 राउंड करेंगे हम सिंपल, उसके बाद 3 राउंड करेंगे हम लोग होल्ड करके उसको करने का विद रेशियो. ठीक है, तो अगेन क्लोज योर आईज एंड कीप योर स्पाइन स्ट्रेट. तो पहले हम थोड़ा इसको इंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं. ठीक है, जब भी हम इनहेल करेंगे ना तो नाक को थोड़ा ओपन करेंगे, नॉस्ट्रल को, अच्छा से एयर का फ्लो. सेकंड, हेड को हम फॉल नहीं होने देंगे, ट्राई करेंगे हम अवेयर रहें. ठीक है, सो फर्स्ट फिंगर ऑन योर फोरहेड. हाँ, फर्स्ट 2 फिंगर रश्मि, फर्स्ट 2 फिंगर थोड़ा ना वो तुम थर्ड ऐसे कर रही हो. तो इसलिए इसको लोग 2 तरीके से करते हैं. एक होता है जो हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं नसाग्रा मुद्रा, एक होता है विष्णु मुद्रा जिसमें हम ऐसे करते हैं. ठीक है, लाइक दैट. तो आप स्विच करते हो राइट लेफ्ट. हम लोग मैं जो सीख के आया हूँ उसमें फर्स्ट फिंगर को नसाग्रा मुद्रा करते हैं. फर्स्ट फिंगर ऑन योर फोरहेड, राइट हैंड का थंब नॉस्ट्रिल पे रखते हैं, रिंग फिंगर को लेफ्ट पे रखते हैं. ठीक है, पहले हाथ को रखेंगे पहले प्रॉपर.
एंड देन आई विल स्टार्ट. ओके, सब लोग अपना हाथ रख लो ठीक से. ठीक है. हाँ. गलत ग्रुप एक्टिवेट हुआ है, मैं बता रही हूँ. क्या गलत? वो समझ गई है. ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से. ठीक है. And keep your eyes closed. Keep your eyes closed. Start from the left. Inhale from the left. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale from the right. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale from the right. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale from the left. 5, 4, 3, 2, 1. Second round. Inhale from the left again. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale from the right. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale from the right. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale from the left. 5, 4, 3, 2, 1. One more round. Inhale from the left. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale from the right. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale from the right. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale from the left. 5, 4, 3, 2, 1. Now relax. ठीक है. ये क्या? एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट जो बोल रहा है ना, हाँ. तो मेरा 3 पे खत्म हो जाता है. अच्छा. तो नहीं तो हाँ, तो थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा उसमें. हाँ. लेफ्ट में से हाँ. नहीं आ रहा है. हाँ. राइट से आ रहा है. हाँ. तो एक ब्लॉक हो सकता है. राइट. हाँ. मेरा तो भी एक साइड से इनहेलिंग कम होता है, हाँ. जैसे उसने बोला. हाँ. मतलब लेना इनहेल बहुत हाँ. हाँ. मतलब तो जल्दी. 5 नहीं, हम 4 कर लेंगे उसको. अब खुद कर रहे हैं. एक्सेल ठीक हो रहा है, हाँ. बट एक्सेल में एक्सेल में 3 पे थोड़ा आपके 3 पे काउंटिंग में कहाँ खत्म हो रहा है. हाँ. तो ये सब थोड़ा प्रैक्टिस है ना. धीरे 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 एज यू गेन मोर कैपेसिटी और थोड़ा नाक ओपन हो जाएगा ना. स्लोली से कम डालिए, मतलब उतने टाइम में स्लोली अंदर है वो सांस लेना. एक्टिवेट नहीं है ना, वही सेम आई थिंक सो हाँ. लेफ्ट. लेफ्ट. हाँ. ओके, ना दूसरा करेंगे हम लोग इसमें. अब होल्डिंग करेंगे. तो सिंपल से करते हैं. विल डू 1:1:1. इनहेल फॉर 4, होल्ड फॉर 4, एक्सहेल फॉर 4. ठीक है. ठीक है. 1:1:1 ग्रेजुअल करेंगे. ठीक, तो फिर से मुद्रा में आ जाएंगे. विल डू 3 राउंड ऑफ दैट. इनहेल ऑन द लेफ्ट. 4, 3, 2, 1. Hold your breath for 4, 3, 2, 1. Exhale from the right. 4, 3, 2, 1. Now inhale from the right. 4, 3, 2, 1. Hold your breath for 4, 3, 2, 1. Exhale from the left. 4, 3, 2, 1. Second round again. Inhale from the left again. 4, 3, 2, 1. Hold your breath for 4, 3, 2, 1. Exhale from the right. 4, 3, 2, 1. Inhale from the right. 4, 3, 2, 1. Hold your breath for 4, 3, 2, 1. Exhale from the left. 4, 3, 2, 1. Third and last round. Inhale from the left again. 4, 3, 2, 1. Hold your breath for 4, 3, 2, 1. Exhale from the right. 4, 3, 2, 1. Inhale from the right again. 4, 3, 2, 1. Hold your breath for 4, 3, 2, 1. Exhale from the left. 4, 3, 2, 1. Now relax. एक्सेल के बाद होल्ड. हाँ? नेक्स्ट में एक्सेल लेने का होल्डिंग है, बट एडवांस पे एक्सेल में होल्ड करते हैं. अब कभी प्राणायाम के बाद जैसे खत्म होता है तुरंत मतलब थोड़ा खत्म होने के बाद आराम से बैठते हैं ना. ठीक है. हाँ. कभी घर पे थोड़ा रिलैक्स टाइम लेकर के आराम से, जैसे नहीं कि खत्म हो कब भी कुछ करना है, नहीं, बैठ कर आराम से. उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, केवल कुंभक होता है. नाम सुना केवल. दैट इज नॉट, कहते हैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूं. एक होता है अंतर कुंभ का, बाह्य कुंभ का. एक होता है कि ना आप ना एक्सटर्नल है ना इंटरनल है, आप जस्ट पीस में बैठे हो. जब कोई प्राणायाम करने के बाद आप देखो कि आप ट्राई करो इनहेल नहीं करने का भी, एक्सहेल नहीं करने का भी, होल्ड भी नहीं करे, अपने आप सब कुछ क्वाइट होता है उस टाइम. तो उसको, उस मोमेंट को बोलते हैं केवल कुंभक. जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो, जो हो रही है अपना आप हो रही है इनहेल एक्सहेल. ठीक है. बट आप एफर्ट कुछ नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो, जस्ट एकदम बहुत लाइट हल्का सा हो रहा होता है. उसको बोलते हैं, वो भी बहुत का भी महत्व है इसमें. उसको बोलते हैं केवल कुंभक. जस्ट नॉट अंतर कुंभ का, नॉट बाह्य कुंभ. ठीक है.
ओके तो बेसिकली ऐसे ही तो रहते हैं हम सारा दिन। कर इनहेल कर रहे होते हैं ना, थॉट्स के साथ रहते लेकिन थॉट इसमें होता है कि आपका एकदम माइंड भी क्वाइट हो जाएगा, आप कोई भी प्राणायाम करने के बाद कर सकते हो, माइंड भी थॉट में आएगा। मतलब क्वाइट हो जाएगा, मतलब ना यही अब इसी को देखो ना, आप जब ठीक से करोगे अनुलोम विलोम तो आपका माइंड बहुत क्वाइट हो जाएगा। हैं। आपका ब्रीदिंग पैटर्न आई थिंक थोड़े टाइम के नहीं हो गया मेरा, अभी तो नींद आ रही है। और अब जगने वाला है, अब हम लास्ट करेंगे, ठीक है, हम लोग लास्ट करेंगे ब्रीदिंग, फास्ट ब्रीदिंग एक्चुअली, ये इसको बोलते हैं टम्मो ब्रीदिंग। टम्मो। हाँ ठीक है, मैं पहले एक्सप्लेन करूँ करना कैसे है। आजकल विम ऑफ का ब्रीदिंग, इसको बहुत नाम, उसको बहुत पॉपुलर बना दिया है उसको विम ऑफ। एक्चुअली टम्मो ब्रीदिंग इज वेरी गुड फॉर योर लंग, इट इज वेरी गुड फॉर बॉडी का टेम्परेचर। कहते हैं जो देखते हो ना हिमालय में, कहते हैं कि जो मतलब वो योगी होते हैं वो उतना ठंडा में भी ठंडे कपड़े उन्हें बॉडी पर लगा के सुखा देते हैं उसको, इतना बॉडी हीट जनरेट करते हैं। तो आपको ये फील होगा इसमें, अभी जो करेंगे ना, यू विल फील कि बॉडी हीटअप हो गया है, आपको फील होगा कि ब्लड का फ्लो थोड़ा डिफरेंट हो रहा है बॉडी में। तो घबराने की बात नहीं है, आराम से आप करोगे, यू फील द सेंसेशन ऑफ इट। हाँ, अब बैठेंगे तो बैठ के थोड़ा इस मुद्रा में बैठ जाएंगे, ठीक है, इसको टच करके, और टेक लेके नहीं बैठेंगे दीवार से, ठीक है। पूरा कराओगे 20 मिनट? नहीं 20 मिनट नहीं, 9 मिनट का है, 9 मिनट का है, 9-10, 11 मिनट से, ठीक है। 11 मिनट। हाँ हाँ, अब करना कैसे है मैं बता, एक्चुअली करेक्ट आएगा, देखना आप ऑब्जर्व करना। अब तो बैठ ठीक है बैठ, नहीं 6:40 हो गया नहीं होगी। हाँ हाँ ठीक है, अभी बात करें कि अभी करना है, मेडिटेशन नहीं है ना, नहीं नहीं अगली बार ठीक है, जान दो उसको बेचारे के डिनर उसे घर में, हम लोग को भी जाना है। हाँ अच्छा, नहीं या तो करेंगे सारे करेंगे तो नेक्स्ट टाइम सारे कर ले। यू सिंग डिनर? 11 मिनट का है, 11 मिनट का है ये, ठीक है। पहले मोनिका वो फीलिंग कल याद यू रही, फील वेरी गुड आफ्टर 11 मिनट मिनट है बस। सो गुड, यू रिमेंबर। बोलो रोटी छोटी रखो, मैं आई हूँ। हाँ ओके, तो YouTube पे था ना मटर, मैं लगा दूं है तो बस गया, इस पे लगा दे, एक मिनट रुको, आ गया ना स्पीकर आवाज सुन के अच्छा लगा। सबसे ज्यादा मजा आया ना जब टेस्ट में सॉरी ये आपके बैटरी वाला हो गया, मेरे को ट्रांसमिट साउंड सिस्टम का ये वाला? हम जब बहुत अच्छे हैं, ऐसा पहला जो चला हुआ हमारे टेस्ला चालू हुई थी, क्या करना इतना है? एक सीक्वेंस करेंगे एक गणेश मॉर्निंग के लिए, इट्स वेरी गुड यार से। पूरे दिन के लिए हमारा मैंने मॉर्निंग अपना ब्लेसिंग वाला एक बनाया है Spotify पे, and I want to add songs to it, so that's why I'm asking. आज तो थोड़ा भी याद ही हो रहा है, As a companion for the working youth उसको भी with पसंद आई है वाली। Julian. Hi guys. ठीक है। पता है करना कैसे कर समझ लेते हो, ठीक है। इसमें क्या है ना, नहीं पता नहीं, पता नहीं हो, ठीक ही समझा रहा है। हाँ नहीं बता, ये तो 3 राउंड है इसका, ठीक है, इसमें 3 राउंड हो गए। वो भी यही बोलेगा। हाँ नहीं मैं लेट मी एक्सप्लेन देखो, उतनी देर आप होल्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है, जितनी देर बोलता है वो, तो हम लोग क्या ये ना, इसमें क्या करना है, इनहेल करना है, एक्सहेल करना मुंह से, लाइक, ठीक है, ये 30 बार कराएगा, उसको होल्ड कराएगा। अगर आप होल्ड के पहले करते ना हो, तो जब खत्म आपका हो गया होल्डिंग, आप नहीं कर पा रहे तो आप तुरंत इनहेल कर लेना उसको, ओके, और होल्ड करेंगे वहां पे, ठीक है, 15 सेकंड खत्म हो जाएगा, फिर सेकंड और शुरू कर देना बाय द टाइम यू टॉकिंग, ओके। ये के बीच में आप रुक के कुछ और करने लगना, जस्ट कंटिन्यू विद द थिंग, रात के बीच में कुछ और करेंगे। तो 11 मिनट हाँ? के बाद हार्ट स्टॉप है कि उसके बाद ही नहीं कुछ एलईडी चल क्या? रहा है, कुछ नहीं हो गया। नहीं एक्चुअली मैं एलईडी ऑन है, This is the guy. Relax to deep. सवाल बताता हूँ। Lie down, sit down, whatever it takes. Relax. Are you ready? Here we go. Round number 1. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Go with the flow of the breath. In, out, in, out, in, out, in, out, into the belly, into the chest, and let go. Like a wave. Make it circular.
Fully in and letting go. Just keep on going. No pause between inhalation and exhalation. Ten more. Fully in, let it go. Five more. Let's give it all we got. Last one. Fully in and let go. All right. 1 minute breath hold from now on. Be in this moment. Let the body do what the body is capable of doing. Be aware of your heartbeat. Slow it down and just be in this moment. Let that relaxation spread down to your toes, into your fingertips, to the base of your neck and head. You are almost there. Do you want to prolong your breath hold? Pause the video now and continue when you feel the urge to breathe. Okay, recovery breath in. 5, 4, 3, 2, 1. Take a deep breath in and hold for 15 seconds. Exhale in 3, 2, 1. Let it go. Round number 2. Back into that rhythm. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. In, out, in, out, in, out, into the belly, into the chest, and let go. Like a wave. Make it circular. Fully in, letting go. Just keep on going. No pause between inhalation and exhalation. In with peace, out with stress. Ten more. Fully in, let it go. Nice, deep, circular breaths. Five more. Let's give it all we got. Last one. Fully in. And on the exhale, stop. 1.5 minute breath hold from now on. Feel, become aware of your body. If your hands and feet are tingling, or you feel your body temperature is changing, that's okay. You're doing fantastic.
If you need to breathe before I give the cue, that's okay. You are almost there. Do you want to prolong your breath hold? Pause the video now and continue when you feel the urge to breathe. When you are ready, fully in and hold for 15 seconds. Exhale in 3, 2, 1. Let it go. Round number 3. Back into that rhythm. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. In with the relaxation, out with the stress. In, out, in, out, in, out, into the belly, into the chest, and let go, like a wave. Make it circular. Fully in and letting go. Just keep on going. No pause between inhalation and exhalation. In with peace, out with stress. 10 more. Fully in, let it go. Nice, deep, circular breaths. Five more. Let's give it all we got. Last one. Fully in. And on the exhale, stop. 1.5 minute breath hold from now on. Become aware of the blood running through your veins, your heart beating. Feel. Thirty seconds left. You are almost there. Do you want to prolong your breath hold? Pause the video now and continue when you feel the urge to breathe. All right. Breathe in and hold for 15 seconds. Exhale in 3, 2, 1. Let it go. Let your breathing return to normal as you finish up the round. Move your body bit by bit, starting with your fingers and your toes. Let your breathing normalize. If you liked this guided breathing session, we got more for you. We got a free app on our website. Okay. Good job, guys. You turn on the light. Thank you so much, man. Thank you. It was really good. This is very good, huh?
Yeah, it's very nice. हाँ, this is very nice for you know जो जा रहे हैं हम लोग Send इसको the video. हाँ Send the video. हाँ, ये YouTube पे है मैजिक हो गया मम्मी का गायब हो गई Going. इसको